इन इस्लाम ग्रुप में पासवर्ड नहीं है, सिस्टर्स इन इस्लाम ग्रुप में पासवर्ड डाल दें। Right. और साथ में भी तफसीर ग्रुप में भी पासवर्ड सेंड कर दें। Okay. वन ऑफ द इंचार्ज प्लीज मेक श्योर कि तफसीर ग्रुप स्टिल। Yeah, till then we had few questions जिन्होंने raise hand किए थे, the ones who were asking questions उसको हम लोग continue करते हैं and then we will start up by then inshallah all the sisters will join. So far अभी questions नहीं आए, so far अभी उन्होंने अपने views share किए, which I would like to deal with all those views, but I was thinking of starting with love. What is love actually? का recording है, they one they can hear, जो भी हो गया है वो वहाँ पर सुन ले। Okay, let's begin. So as you see, love is an important marriage में सूरह रूम की आयत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहब्बत और रहम दोनों के दिल में डाला है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहम डाला है। तो मोहब्बत is important ingredient for marriage, and Allah subhanahu wa ta'ala has instilled that love in the hearts of husband and wife. दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखें, दोनों एक दूसरे के लिए रहम रखें। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, अल्लाह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डालते हैं। So we see love is there in arranged marriage, love is there in love marriage. So what actually is love? Let's have a small discussion on love. उसके हम दूसरे points discuss करेंगे। What exactly do you think love is? Can somebody define love? What is love? और जो already पहले जवाब दे चुके हैं, I would suggest कि आप कोई नए लड़कियां सामने आए या मदर सामने आए या ज़ेब। ओके, कौन आएगा आगे बढ़कर? ओके, शायद। Assalamu alaikum. How are you, everyone? Okay. What I feel in my definition, I will tell you, love is care and respect. Okay. Trust, care, and respect makes these three words. All right. अगर आप में ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी नहीं है, so that's not love. Okay. In my definition. Absolutely true. Jazakallah khair. Anybody else? Young girls, I would like to have young girls, please. Unmarried girls, young girls who are in co-education, yeah, working girls, working ladies who mix up with the opposite gender. Sharmaiya nahi, come on. Yes, Nimra. Okay, nahi. Okay. Who else? Nimra ne already jawab de chuke hain. I want somebody new. Anybody? Okay. Yes. Nimra. Assalamualaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Razia. I think it's a emotional belief that we start believing that we have certain sickness to some person. Weakness. Absolutely true. Okay, emotional belief that I didn't get the emotional belief that we have certain weakness. We find some attraction to some person. Okay, emotional belief and attraction towards some person. Okay. Right. Anybody else? Through chat, Aida has put, when you put the needs of someone else before yourself, that's love according to her. कौन किसने लिखा? Aida. Aida. Is she Aida? Can I have you on the mic, please? Aida, don't be shy. I want you to build up your confidence. Please speak up. That's all right. आप बोलो, mic unmute करो. Okay, if she's shy, okay, no problem. Okay, it's connecting. All right. So, Ji, Aida, how old is she? Nasreen? Is she young, unmarried? She is unmarried and pretty young. Yeah, she is the youngest. That's all what I want to know. Okay, how old is she? She, mashallah, she has a very good opinion on love. So, okay, we have collected few. Okay, Nasreen, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? I wanted to just read out what Nimra has just posted. A person with whom your journey to Jannah becomes easy and he makes you love Allah subhanahu wa ta'ala even more
everything happens for the sake of Allah Azza wa Jal. And these are all young teenager girls, subhanallah, all single and unmarried, mashallah. Barakallah feekum. Alhamdulillah. We want their views. We want their views because this program is basically for them. हमारे लिए नहीं है. हमारा दौर निकल चुका है. तो ये इनका दौर है, इनके लिए है. इनका clear understanding होनी चाहिए what love actually is and what we are taught. Yes, Tashreen, आप क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? Just a correction कि हमारा दौर निकला है to get married, but हम ये use करेंगे अपने बच्चों के लिए. How do we select partners for them, or how do we, to what extent do we give them freedom, so-called freedom to choose a right partner? तो ये दोनों parties के लिए important and essential aspect है. जी जी बिल्कुल. हमारा दौर निकल चुका है. In a sense, we have already selected our partners, and alhamdulillah we are blessed with our partners and we are in love with our partners. Alhamdulillah, much in love with our partners. और वो love जो आप लोग young girls चाहती हैं, जो love marriage करना चाहती हैं ताकि वो love मिले, this is what we have it. हमारे पास alhamdulillah, and this is what we want to share it with you. Okay, we have still 2 more. Yes, Saida. Ma'am, actually we are living in a generation जहाँ पे love marriage को like अगर लड़की किसी को पसंद करती है या लड़का किसी को पसंद करता है तो लोग समझते हैं कि like they are having relationship. Yes. Okay. Very good. So love marriage like it's pretty much like बहुत गंदा समझा जाता है क्योंकि ये हमारा generation है and because के यहाँ पे ऐसा ही होता है. And we are living in an era like in which WhatsApp, dating app, right. It's a okay. Okay. Jazakallah khair. We'll begin now. Inshallah, Jumana will have it afterwards. Okay, let's begin. What first, सबसे पहले important ये चीज है कि understanding what is love. हमें जो दिखाया जाता है what is love, we have seen love is something extraordinary thing. और जहाँ पे हम लव की बात होती है लड़के और लड़की के बीच में जो लव की बात होती है the first thing that comes to our mind is Romeo and Juliet, Laila Majnun, Soni Mahwar, Shirin Farhat, ये सारी कहानियां हमारे सामने आती हैं. This is love. और हम जो पढ़ते हैं the secular people जो हमें सिखाते हैं this is love, ऐसे लव होना चाहिए. और आप देखें ये सारी कहानियां कितनी अब तक हमारे पास है ये सारी कहानियां and we blindly follow them और we depict love to be like that कि ऐसे होने चाहिए कि लड़का और लड़की आपस में ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए. और हमारा young generation, not only this, what is shown on the media, the entertainment, the Bollywood हो या Hollywood हो या any wood हो, हर wood में यही चीज बताई जाती है कि जब मोहब्बत होती है तो एक दूसरे के साथ बस एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं and they forget everything, they only care for each other. It is that sort of love which they depict. और ये throughout the time हमें यही बताया गया है कि this is how love is और यही चीज हमारे जहनों में डाल दिया गया है और हम समझते हैं कि love ये है. Excuse me, this is not love. According to me, what we have been seeing, Romeo and Juliet, Laila and Majnun, all these things, they are not love. What I categorize that is as obsession and intoxication. It is not love. It's addiction, but it is not love. That is obsession. और हमारे इस्लाम में ये obsession नहीं है. So first of all, what we see is wrong. Because और आप खुद देखें if you do psychology on this या philosophy के तहत से भी आप देख लें, this is not love, this is obsession. Especially the psychological part, the psychological students जो है यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछें कि is this love? That is not love, that is obsession. That is comes under obsession. So what is love then? हमारे दीन में इसका डेफिनेशन दे चुके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है व्हाट इज लव, एक क्लियरली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज लव. और इससे पहले
और हायरार्की ऑफ लव, आप किसको पहले लव करेंगे, बात किसको करेंगे, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन आवर इस्लामिक पर्सपेक्टिव. So what is the love in according to our Islamic perspective? Love is what you have for Allah. सबसे पहले the love is for Allah subhanahu wa ta'ala. हदीस में आता है एक मोमिन तब तक मोमिन नहीं है जब तक उसके लिए मोहब्बत अल्लाह और रसूल से उसकी मोहब्बत सबसे पहले अल्लाह रसूल के लिए हो और उसके बाद बाकी सबके लिए. तो जब हम मोहब्बत करें तो सब पहले अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करें और उसके बाद बाकी सब से मोहब्बत करें अल्लाह की खातिर. दैट इज लव. तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और उसके बाद अल्लाह की खातिर फॉर सेक ऑफ अल्लाह लविंग एवरीबॉडी एल्स. और फिर सबसे पहले कौन आता है? पेरेंट्स. सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स, उसके बाद आते हैं आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, एवरीबॉडी एल्स, रहम के रिश्ते, एंड देन इट गोज ऑन. ससुराली रिश्ते, रिलेट फार ऑफ रिलेटिव्स, नेबर्स, एवरीथिंग. तो पहले मोहब्बत है हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर और उसके बाद अल्लाह के लिए सबसे मोहब्बत करना. सेकेंडली, अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब क्या होता है कि जब खाली हम ये बोलते बैठे कि अल्लाह आई लव यू, अल्लाह आई लव यू, हो गई मोहब्बत. कुरान की आयत में आता है कि अगर तुम ये कहो कि तुम मोमिन हो, यानी तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, क्या तुम्हारे साथ ट्रायल नहीं ली जाएगी, तुम्हारे साथ पूछा नहीं जाएगा? ओके, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तुमसे चेक नहीं किया जाएगा? ओके, let's for the meantime, inshallah we'll do that later. I have quoted it wrong. What I intend to say was कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करना है. तो मोहब्बत किस तरीके से करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया है कि मोहब्बत किस तरीके से करना है. मोहब्बत का मतलब होता है कि fulfilling your obligations towards Allah subhanahu wa ta'ala. Just by saying कि I love you, I love you, I love you, वो नहीं होता. ईमान का मतलब होता है दिल से कबूल करना, मुंह से बोलना और अमल से दिखलाना. That is ईमान. तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें अपने अमल से दिखाना होता है. So love is associated with responsibility. That is true love. Fulfilling the needs of others. और जैसे आयदा ने बताया है, when you put needs of others before you, what she means is fulfilling my responsibility towards the other person. Parents हो या spouse हो या बच्चे हो, कोई भी relation हो, fulfilling my responsibilities towards that. हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक के लिए हुकूक रखे हैं, राइट्स रखे हैं. पेरेंट्स के राइट्स बच्चों पे, बच्चों के राइट्स पेरेंट्स पे, हस्बैंड के राइट्स वाइफ पे, वाइफ के राइट्स हस्बैंड पे. सो a set of rights are given there. और जब हम ये राइट्स मुकम्मल करते हैं तो तब हम मोहब्बत करते हैं. ये रोमियो एंड सोनी एंड महिलवार, इन सब के पास जो ये सारे लव स्टोरीज जो इतने फेमस लव स्टोरीज है, इनमें कहीं पर भी ये डिपिक्ट नहीं होता है कि इन हम हुकूक अदा करेंगे. और इनमें से हुकूक अदा करने का कहीं पर भी ये नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक I mean they are madly in love, they want them. और यहाँ पर कहीं पर भी इनसे see love का मतलब ये होता है खाली आप अपने पार्टनर से लव ना करें, because we have to love everybody, not just the partners. My parents are there, my siblings are there, my ससुराली रिश्ते हैं, मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं. So love means I have to fulfill every responsibility. मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती हूँ. आई एम फोकसिंग कंप्लीटली ऑन माय हस्बैंड. इट्स रॉन्ग. What about the responsibilities of other relations? I have to fulfill those relations, my parents, my siblings, my children, everybody. So love doesn't mean just one and one person.
It is first of all, as I said, पहले अल्लाह और रसूल की मोहब्बत करना और उसके बाद में की खातिर दूसरों से मोहब्बत करना और साथ ही साथ पूरे रिश्तों में मोहब्बत हो। यहाँ पर सिर्फ लव स्टोरीज में ओनली एक एंगल से बताया जाता है। दे डोंट केयर अबाउट देयर पेरेंट्स, उनको कितनी तकलीफ होती है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। That's not our deen. We care about everybody. We are not selfish. A Muslim is never a selfish. जो हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हम कैसे उनको भूल सकते हैं? हम कैसे उनका दिल तोड़ सकते हैं? एक नए पर्सन के लिए who is walking into our life, we don't even know that person. तो हम उसके लिए कैसे हम दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं? Think about that. जिसने, जो पेरेंट्स ने आपको सारी जिंदगी आपको संभाला है, आपको देखा है, आपकी खुशियों का ख्याल रखा है, हम कैसे एक बंदे के लिए सब रिश्ते तोड़ सकते हैं? Is that love? That is not love. Love is giving. Giving not just one relation, but giving it to every relation. So if you think कि खाली सामने वाला लड़का पसंद आ गया है, कोई एजुकेशन में पढ़ रहे हैं या ऑफिस में पसंद आ गया और आपके पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ दैट, तो फिर डू यू थिंक कि यू आर डूइंग जस्टिस? बिकॉज उससे अगर आपको मोहब्बत है तो उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत आपको अपने पेरेंट्स से है, तो उनका भी ख्याल रखना है आपको। खैर एनीवे, तो लव हियर मींस फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए, सबसे पहले किसके लिए आना चाहिए, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और उसके बाद में सेकंड, love comes with responsibility. Second point, love comes with responsibility. Third, love grows with time. ऐसे नहीं होता कि आप किसी को देखें और मोहब्बत आ जाए। This is again the thoughts given to us by the secular region. Cupid, आपको पता है 14 February celebration इसीलिए होता है। And you have seen that the Cupid's arrow, वो उनके दिल में जाके लगता है और वो एक का एक उनका दिल अटर करने लगता है एंड सामने वाले से मोहब्बत हो जाती है। That is not love, that is attraction. और do understand, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे फितरत के अंदर ये अट्रैक्शन रखा है। Opposites meet, opposites attract. साइंस में भी यही लॉ आता है ना, opposites attract and like repel. तो यहाँ पर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का जो फितरा है वो हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है। क्यों रखा है? फुलफिल दिस, मैरिज होती किस लिए है? फॉर रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इसके लिए मैरिज रखा जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इसके लिए। और टू फुलफिल द सेक्सुअल अर्ज भी सिर्फ इसी मकसद के लिए दिए गए हैं कि आदमी और औरत करीब आए ताकि ये पैदा हो। अगर जस्ट फॉर सम मिनट ये सोच ले कि वो सेक्सुअल अर्ज नहीं होती, वो अर्ज हमारे अंदर नहीं होती, लड़के और लड़कियों में ये अर्ज नहीं होती, वो शादी नहीं करता। किसी को इंटरेस्ट नहीं होती बच्चे पैदा करने की। कौन ये हेडेक लेता? ये हेडेक सब इसीलिए लेते हैं ताकि उनको उससे कुछ मिलता है। दैट स्वीटनेस ऑफ the love, the sweetness of sexual interaction, वो मिलती है हमको। तो उसके बेसिस पे हम रेडी होते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। अदरवाइज ये नहीं होता तो कोई नहीं करता। It would have been a headache. Just imagine getting nothing, उसके ऊपर से 9 months ये बच्चे को लेकर घूमते रहो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला gives us something. Sexual urge इसी के लिए रखा है ताकि आपस में मिले और आगे जनरेशन बढ़े। अंडरस्टैंड द फितरा कि हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों रखा है। तो ये हमारे एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर रखी गई है। तो इस बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। Every young girl and every young boy should understand as soon as they reach 13 years या 12 years या अब तो और जल्दी, because of the thanks to the media, अब तो और जल्दी उनके अंदर ये urges पैदा हो जाते हैं। The body is not ready but the urges are ready by watching all the crap which we come across in the media. Body is not at all ready but minds are ready, the urges are ready.
तो खैर बहरहाल जो भी है, तो हमें यंग गर्ल्स, हमारे आने वाली जनरेशन है, तो उन्हें खास ख्याल रखना है. दिस इज द इंस्टिंक्ट, ये हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए रखा है. क्यों रखा है? I've explained everything. So understand this is our instinct, we have to keep the control. लेकिन this is natural, सामने कोई आएगा, we will get attracted. That is not love. Don't mistake it for love, because I gave you the definition of love. Again, I will tell comes with responsibility. Love is for Allah subhanahu wa ta'ala. Love is not for the person whom I'm looking at. Love is for Allah subhanahu wa ta'ala. Second, love comes with responsibility. And third, love grows with time. Love grows with time. And fourth, love means giving. Giving first. Giving it to the others, what they desire. That is love, which strengthens the relationship. So as we said, हमारे instinct है. So do understand, जब it is normal now. It is the 21st century. इसीलिए हमने mention किया, this is the 21st century. तो इस era के हिसाब से हमें चलना है. ये era वो है जहां पर opposite genders are mixing. कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल के टाइम से चलता है ये. स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर उसके बाद स्टडीज के बाद फिर आप ऑफिस की साइड पे आते हो, वर्किंग प्लेस हो, तो ये सारा अट्रैक्शन आपके साथ लगा रहेगा. अनलेस यू गेट मैरिड, तो ये लगा रहेगा. और एक बात मैं और बता दूं, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब लड़की हमारे अंदर ओवल्यूशन होता है, और जब ओवल्यूशन होता है तो हम बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, तो हम एक्साइट हो जाते हैं. वी वांट समबडी, यू नो, वी वांट समबडी टू मेट, ताकि जो ये सारा प्रोसेस जो है, इट इज ओनली फॉर मेटिंग. तो हम चाहते हैं कि कोई आए. तो ऑफ कोर्स हम अपने अर्जेस को कंट्रोल करके रखते हैं. लेकिन एज आई वाज सेइंग कि हम औरतों का, हम लड़कियों का प्रॉब्लम ये होता है कि जो फर्स्ट मेल मिलता है उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, उससे हम फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं. ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, और उसके बाद में use your mind to fall in love, rather not to fall in love, to choose your partner. Keep all these things in your mind to choose your partner, and do understand that what you will be going through is not love, but it will only be attraction. Starting में वो attraction होगा, उसके बाद में फिर आप लोग मिलोगे, आप लोग बात करोगे, and you will understand more and more, and then more and more attraction होगा, because ये नामहरम है. और जब दो नामहरम मिलते हैं तो सिर्फ शैतान बीच में आता है. जो अल्लाह की मर्जी के अगेंस्ट हो रहा है, तो वहां पर फरिश्ते नहीं आएंगे, शैतान आएंगे. तो आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन पैदा होगा. वो सामने वाला लड़का आपके काबिल भी नहीं है, वो बिल्कुल आपके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा वो आपके काबिल है, बिकॉज शैतान आपकी आंखों में ये डाल देगा. क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं है, अल्लाह का अप्रूवल तरीका नहीं है. वी आर वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ. तब तो फिर हमारा साथ शैतानी होगा. तो इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट कि ये चीजें नॉर्मल है, अट्रैक्शन होना नॉर्मल है, और पहला लड़का देखते ही अट्रैक्ट हो जाना नॉर्मल है. तो बी वाइज, ऐसा कुछ हो, चाहे आप स्कूल के टाइम पर ही क्यों ना हो. खैर अभी स्कूल गोइंग गर्ल्स तो हमारे ग्रुप में है ही नहीं, तो कॉलेज के टाइम पर हो, वर्क प्लेस पे हो, जहां पर भी हो, आपको लगता है यू हैव बीन अट्रैक्टेड टू समबडी, द सेफेस्ट वे इज गो एंड अप्रोच योर पेरेंट्स, योर मदर. योर मदर शुड बी योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और ये माओं के लिए भी है. आप उनको रोक नहीं सकती. दिस इज द 21st सेंचुरी. आप उनको रोक नहीं सकती, बिकॉज आप अपनी मर्जी से उनको को एजुकेशन में भेज रही हैं, आप अपनी मर्जी से उनको जॉब
करने की इजाजत दे रही हैं. You yourself are exposing your daughter to the opposite gender. आप खुद भेज रही हैं. तो जब आप कर रही हैं और जो मदर्स नहीं कर रहे हैं, जो मदर्स अपने बच्चों को एजुकेशन में नहीं डालें, गर्ल्स कॉलेज में डालें, जो मदर्स अपने बच्चों बेटियों को जॉब करने से रोकती हैं, स्टिल थ्रेड है, क्योंकि हमारे घर में खुद सोशल मीडिया मौजूद है. नो क्वेश्चंस प्लीज, अभी इस वक्त नहीं. हमारे घर में खुद मौजूद है सोशल मीडिया, यहाँ तक कि हमें बाहर अपने बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है, लड़के चलकर हमारे घर में आ रहे हैं. दे आर बीइंग एक्सपोज्ड. हर एक के हाथ में मोबाइल है एंड वी डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग. तो इसीलिए माओ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर. वो अपनी बेटियों के साथ दोस्त बनकर रहें, उनसे पता लगाते रहें कि कहाँ क्या चल रहा है उनके जहनों में, कहाँ उनके साथ कोई अट्रैक्शन हो गया. इट्स नेचुरल. मदर्स भी साउंड सुन ले और बेटियां भी सुन ले. इट इज नेचुरल. अट्रैक्शन इज नेचुरल. यू कैन नॉट स्टॉप देम. खाली एक ही तरीका है स्टॉप करने का, एंड दैट इज घर की चार दीवारी के अंदर है. नो सोशल मीडिया, नथिंग. जो पहले जमाने में होता था अब वो पॉसिबल नहीं है. जो पहले जमाने में होता था वो अब पॉसिबल नहीं है. तो अब जो चल रहा है उसके साथ आपको और हमको सबको तैयार होना है. तो बेटियां भी तैयार हो और माएँ भी तैयार हो. माएँ अपने बेटियों से दोस्ती रखें, क्लोज फ्रेंडशिप रखें, पता लगाते जाएं कि कहाँ पर अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है. और अगर कोई अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है तो उनको बोलें कि लाकर मिलाएं, वो लड़के से लाकर मिलाएं. और लड़कियां अगर किसी से अट्रैक्ट हो रही हैं तो फिर ये काम करें कि फौरी जाकर अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को बताएं. मदर शुड बी योर वेरी क्लोज फ्रेंड. तो माँ को जाके बताएं, आई एम अट्रैक्टेड टू सच पर्सन. आप जाकर चेक कर लो वेदर दैट बॉय इज सुटेबल फॉर मी और नॉट. बिकॉज ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है. डू अंडरस्टैंड, दिस इज अट्रैक्शन. तो ऐसे में क्या किया जाए? अट्रैक्ट हो गया, इट्स नेचुरल, हो गया, तो क्या किया जाए? पेरेंट्स का हेल्प लिया जाए. और पेरेंट्स का काम है कि पेरेंट्स जज करें कि वो लड़का बेटी के लिए सूटेबल है या नहीं है, बेटी के हिसाब, बेटी के नेचर से मैच करता है कि नहीं करता है. पहले व्हाट वाज दैट? अरेंज मैरिजेस. क्या देखते हैं? ओके, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का जॉब करता है, सिक्योर्ड है, उठाकर शादी कर दी, बस फिनिश. दीन देखा? नहीं देखा. ये देखा कि आपकी बेटी के थिंकिंग, पर्सपेक्टिव उस लड़के से मैच हो रहा है? नहीं देखा, कुछ नहीं देखा. शादी के बाद दोनों आपस में लड़के लड़कियों के लिए आफत बन जाती है, बिकॉज उनके साथ कुछ कॉमन है ही नहीं. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अरेंज मैरिज. तो उसके लिए हम माओं के लिए, माँ और बाप के लिए जरूरी है अपने औलाद को समझे, उनके पर्सपेक्टिव को समझे, उनकी फितरत को समझे, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को जाने. और जब हम उनके लिए लड़का सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सारी क्वालिटीज देखें कि उस लड़के में है क्या जो मेरी बेटी को खुश रखेगा या मेरे बेटे को खुश रखेगा. अगर आपकी बेटा है और आप लड़की में देख रहे हैं तो फिर वो देखें कि वो सारी चीजें लड़की में मौजूद है नहीं है, जो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं. इसीलिए नस्ब देखा जाता है. नस्ब, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, नस्ब इज इम्पोर्टेंट. किस लिए इम्पोर्टेंट है नस्ब? बिकॉज दोनों की थिंकिंग एक होनी चाहिए. एब्सोल्युटली ये है कि पूरी थिंकिंग नहीं होगी, लेकिन जो असल चीज है, लाइक सपोज माय डॉटर इज आउटगोइंग, शी इज वेरी स्पोर्टिव, और आप उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दें जो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाता, वो सिर्फ घर में ही बैठना पसंद करता है, उसके लिए तो फिर अज़ाब जान बन जाएगी. तो ऐसे लड़के से रिश्ता जोड़े जो लड़की को खुश रख सके. दोनों आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ, लड़का और लड़की आपस में खुश रह सकें. ये चीज देखना बहुत जरूरी है. और ये लड़कियां, बिकॉज आजकल की जनरेशन, उनके जहन में यही रहती है, उनके माँ बाप को वो देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पेरेंट्स ने ये सब कुछ नहीं देखा. बहुत कम लोगों के पेरेंट्स ने देखा है. तो फिर उन बेटियों को, हाँ, बच्चों को ये लगता है
कि हम अपने मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे, माँ बाप तो ऐसी जिंदगी गुजारे हैं तो बेटर है कि हम खुद सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो आगे बढ़ के जाते हैं सेलेक्ट करने में। तो ना वो सही है ना ये सही है। जैसे हमने पहले कहा था कि देयर आर गुड पॉइंट्स इन बोथ एंड बैड पॉइंट्स इन बोथ। तो लड़कियों को आगे बढ़कर अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप लोग अगर सेलेक्ट करने भी चाहो तो आप लोगों के पास इतनी न नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है जज करने के लिए कि वो लड़का अच्छा लगे, वो लड़का सारी जिंदगी आपके साथ गुजारेगा या नहीं गुजारेगा। You don't have it, so leave it to your parents. पेरेंट्स के पास नॉलेज भी है, पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है, एंड द पेरेंट्स शुड वाइजली सेलेक्ट। जब अगर कि आपकी बेटी ने कहा है कि she is been attracted to somebody, there's nothing wrong in that. We have to accept it. वक्त बदल चुका है, this is the 21st century. There is nothing, absolutely nothing wrong in that. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद परमिशन दी है कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से देखें, एक दूसरे को देखें। एज लॉन्ग एज वो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से पसंद आ जाते हैं, तो फिर वो आके अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आकर अपने पेरेंट्स को बता दें। और माएँ, हर माँ को चाहिए कि ये जान ले कि निकाह के लिए लड़का और लड़की का कबूल वो दिल से रिश्ते को कबूल करना चाहिए। जब तक के कबूल ना हो, हम लड़कियों को जबरदस्ती रिश्ते में नहीं बांध सकते। ये उनका हक है, ये दीन का दिया हुआ, अल्लाह के तरफ से दिया हुआ उनका हक है कि वो अपने पसंद से शादी करें। पसंद से शादी करें यानी कि वो भी देखें कि उनको ये लड़का पसंद है या नहीं है। तो अगर उनको कोई अट्रैक्ट हो जा रहा है और वो आके आपको बोल रहे हैं, तो इसमें उनकी कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। हाँ, गुनाह उस वक्त होगा जब वो आपस में फिर एक दूसरे से ज्यादा गुफ्तगू करने लगे, बातें करने लगे, ये देखने के लिए कि उसमें आगे की जिंदगी में हम मेल खाएंगे या नहीं मेल खाएंगे, whether we are compatible or not. This is another factor which I heard कि compatibility देखी जाती है। See बेटा, compatibility कभी नहीं होती, compatibility को बनाना पड़ता है। Marriage is all about compromise. Love is all about compromise and sacrifices. With compromise and with sacrifice comes compatibility. आप चाहते हो, most of the girls यही उनके जहन में होता है, because this is again the secular given thought कि आपको compatibility check करनी चाहिए। जब तक आप compatible नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो compatibility नहीं आती, compatibility को लाना पड़ता है, create करना पड़ता है through compromise and sacrifice। आप देखते हैं कई रिश्ते वेस्टर्न में देखे, कई मैरिजेस, वन मैरिज फेल्ड, सेकंड मैरिज फेल्ड, थर्ड मैरिज फेल्ड, फाइनली फोर्थ मैरिज में सेटल डाउन। व्हाट हैव दे डन इन द फोर्थ मैरिज? दे हैव लर्न टू कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस। वही अगर फर्स्ट मैरिज में कर लिए होते तो दे वुड हैव टू गो थ्रू ऑल दिस टर्मोइल। लेकिन ये चीज समझ में आने वाली चाहिए है। ये सेक्युलरिज्म जो हमें हमारा जहन को पॉइजन कर रहा है ना, अंडरस्टैंड देम, उनकी चाल को समझें। कंपैटिबिलिटी नहीं पता चलती। और कॉलेज में जैसे अभी किसी ने कहा था कि कॉलेज के बॉयज वो तो अपने आप को ऐसे पोज करते हैं जैसा कि दे आर द बेस्ट फॉर अस, वो खाली दिखावे के हैं, अंदर इज समथिंग डिफरेंट। तो वी शुडंट गो बाय ऑल दीज थिंग्स। ये खाली बाहरी तौर पे जो देखते हैं उन सब चीजों के लिए हम उन सब चीजों को नहीं देखना चाहिए। Compatibility does not comes. Compatibility comes with compromise and sacrifice. और एक पॉइंट, जोड़ियां आसमानों में बनते हैं, बेशक जोड़ियां आसमानों में बनते हैं। जो आपके लिए है बस वही आपकी जिंदगी में आएगा। तो जब आ जाता है तो वो चाहे वो आपके साथ compatible हो या ना हो, you have to turn your life into a
peaceful life, a compatible relation में बनाना है, ये हमारे हाथ में है. And this is all what Islam teaches us. All right. Over to Nasreen, and I'll continue. There are a few more points. Inshallah, I will continue. Let's have what Nasreen. Let's hear what Nasreen have to share with us. Yes, thank you, Dr. Safina. Thank you, Dr. Safina. Haifa Mujahid has posted a very beautiful point here, that parents' choice is the best for us, no doubt. But forcing your child is not the way. Every child has the right to choose their partners because we have to live with them. It's a very beautiful point. And this is what precisely we are trying to say. Actually, आप देखने जाएंगे तो जैसे डॉक्टर सफीना ने हदीसों से और कुरानिक वर्सों से और जो हमारे अंदर केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन है विच इज अ पार्ट ऑफ अवर फितरा, उससे समझाने की कोशिश की है कि यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. आप अपने बच्चे को एक आइसोलेटेड रूम में डिब्बे में बंद कर दें कि कोई बाहर का जेंडर हमारा देखे नहीं, एंड वी विल जस्ट डू अ नाइस अरेंज मैरिज और एनीथिंग यू डू, बट उसके अंदर जो रिलीज हो रहे हैं हार्मोन्स, यू कैन नॉट स्टॉप दैट. So it is a part of a fitra. So एक टिप जो पेरेंट्स के लिए है और एक टिप जो यंग गर्ल्स के लिए, अनमैरिड गर्ल्स के लिए है कि it is a part of a fitra. As soon as you reach your puberty, you will definitely have those urges and those feelings. Being a Muslim, being a believing Muslim, and alhamdulillah with sound knowledge, what is it that is expected of us? हमारे लिए being a Muslim, we will always have two ways to do things. One is the halal way and one is the haram. Now, we being young, inexperienced, we depend on our parents. Now, parents have to be equally matured and experienced. यानी यहाँ पर वो पेरेंट्स के अंदर इस्तात और वो नॉलेज और वो हिकमत और बसीरत होनी चाहिए कि दे सिलेक्ट द राइट पार्टनर. एंड द 4 criteria, as Dr. Safina has already mentioned, कि हमें हमारे हदीस में ये क्राइटेरिया मिलते हैं. तो we follow that criteria and we follow the track where our parent is choosing a right partner. But I insist on one element, which is loving a person. Now that love, as I asked you the question earlier, is it that you get married and then you fall in love, or is it that you fall in love and then get married? And love के हमको variety of definition मिले हैं, that there should be an emotional attachment, there should be trust, there should be care, there should be respect. But as Dr. Safina said, love is a very, what I can say is a very tricky term. Okay, love जो है वो attraction, वो हमारे केमिकल रिएक्शन, वो हमारी इमोशनल सिचुएशन, उसके ऊपर बेस्ड है, एंड इट कैन चेंज एंड टेक अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर. बट वी आर नॉट लुकिंग एट जस्ट सैटिस्फाइंग अवर अर्जेस. वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैरिज. अ मैरिज is a long lasting, I would say, a relationship of eternity. Masalan, it goes on and on. और आपकी जो लाइफ है उसका मेजर पार्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर decision. Now, there are boys or there are girls who could be just a friendship के लायक, dating के लायक. I'm sorry I'm using those terminology, but let me be open. We all know these things are happening on social media, on virtual platform. So कुछ लोग जो होते हैं वो marriage material होते हैं. कई बार young girls being inexperienced will never have an understanding to realize that who is a right partner for them. At that juncture, the elders step in and they can help you out. But from the parents' point of view, a forced marriage is definitely not the right thing. And as we discussed in the hadith, जो मैंने starting में quote किया था, कि the ingredient of love has to be there. I actually want to go against Saida Ibtisam when she said that love marriage को गंदा समझा जाता है. Yes, गंदा समझा इसलिए जाता है क्योंकि उसमें गंदी चीजें involve होती है. But we have a very fine example of Khadija radiyallahu anha, where she actually, if she fell in love with Nabi sallallahu alaihi wasallam because of his speckless character, and then she made that love, उसको arrange कर दिया गया. So not necessary that love marriage in itself is a very ganda concept. At times, a good proposal or a good perspective can come through parents, through elders, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस में या आपकी वाकफियत में कोई एक बंदा आता है whom you think is a right candidate, but that can be turned into a very beautiful arrangement, which I would like to, यानी उसको मैं एक terminology अगर दूं कि introduction marriages, assisted marriages, wherein the family is there to provide all the assistance and do the needful. Love marriage and arranged marriage in a way is kind of in the kind of way they are connected to each other, because no marriage can exist without love. Okay, and love
The final station is marriage. So to culminate into a marriage, it has to be arranged. तो आप ये दो टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल अलग ना करें और उस एक के लिए पॉजिटिव और एक के लिए नेगेटिव नहीं करें. इसका तरीका डिसाइड करेगा कि ये सही है या ये गलत है. A love marriage can culminate into a beautiful arranged marriage, and an arranged marriage can culminate into a beautiful loving marriage. तो हमारा गोल क्या है? Falling in love with the same person over and over again, because the important element here is responsibilities, which means कि सिर्फ शादी होने तक का ये मेहनत नहीं है. In fact, असली मेहनत जो है वो शादी के बाद लगती है, and over a period of time, till the time you're married, it constantly you have to feed your marriage with love. So love ingredient as a taboo नहीं है, आपको continuously उसको feed करते 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 जाना है, तब जाकर बिइज़्निल्लाह आपकी एक कामयाब शादी बनती है, और कामयाब शादी से एक कामयाब कम्युनिटी, कामयाब सोसाइटी, एक कामयाब नेशन बनता है. So be very careful. If you don't have that kind of experience, depend on the elders. इसमें जो है ना शैतान प्लेज अ मेजर रोल कि वो आपके दिल में नेगेटिविटी एंड फेटल अट्रैक्शंस डाले. इसीलिए जितनी हमारी इस्लाम की जो पाबंदियां या रूलिंग्स हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल दैट. इंशाल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम जो कल्चर्स और सोशल्स में होगा, वी विल टेक अप दिस टॉपिक, बट जस्ट आई एम जस्ट टचिंग अ बिट कि जो जो पाबंदियां या जो जो हुदूद बनाए गए हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है. मसलन हिजाब, मसलन नॉट मिक्सिंग अप, लाइक हाउ डॉक्टर सफीना हैज मेंशन्ड दैट हदीथ अबाउट टचिंग द गैर महरम. सो ऑल दिस थिंग्स जो ये बनाए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस अडोनमेंट को लेकर और हमारी हिफाजत और प्रोटेक्शन को लेकर, इज एक्चुअली मेंट टू प्रोटेक्ट अस, ताकि हम वो शैतान के ट्रैप में ना फंसें. So when the time comes, definitely inshallah we will have things that will go ahead, and may Allah put barakah and may Allah give us hikmah और हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को to make the right choices in life. Now I have certain questions जो कि एक typical young independent woman के जहन में आएगा. I will just put it, these questions are based on some questions that were raised to me and to Dr. Safina, and we have been going through all those. So I just want Dr. Safina to address those questions, like, it's my life, it's my choice. So I have the full freedom of selecting my partner. Yes, Dr. Safina. Yes, absolutely true. It's your life, it's your choice. You do have the right to select your partner. Allah subhanahu wa ta'ala has given you the right. Allah subhanahu wa ta'ala has given you the right to select your partners. Your parents cannot force force on you. आपके parents आपके ऊपर जबरदस्ती कोई भी रिश्ता बांध नहीं सकता, because ये परमिशन आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से दी गई है. अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आपको दी गई है. आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं डाल सकते. बट दिस इज नॉट योर लाइफ. ये जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, दिस इज माई लाइफ, माई डिसीजन, my this, my that, my that. No, this is not your life. Islam says this is not your life. Your life is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. It is not your life. You are a slave of Allah. हम अपने आप को क्या बनते हैं? अल्लाह की बंदी हूं मैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको आता है कि it is my life, this is the concept of the West, because they don't believe in God. They don't believe they are the slaves of their God. तो हमारे दीन में डिफरेंट है. हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हमारी लाइफ अल्लाह सुब्हाना ताला की है. तो हम सिर्फ वो करेंगे जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमसे कहा है. तो बेशक मैं अपने मर्जी से लड़के को पसंद करूं, लेकिन साथ ही साथ मैं, क्योंकि अल्लाह की बंदी हूं और अल्लाह के रास्ते पे चलना मेरा फर्ज है, मैं अपने माँ बाप का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ, जबकि अल्लाह और रसूल के बाद माँ बाप को खड़ा किया गया है. द नेक्स्ट इज द पेरेंट्स. पेरेंट्स की इताअत करना. पेरेंट्स ने मुझे पैदा करके बड़ा किया है, आज ये काबिल बनाया कि मैं ये कह सकूं दिस इज माय लाइफ. तो हाउ कैन आई ओवरलुक दैट? आई कैन नॉट ओवरलुक दैट. तो उसका भी ख्याल रखें, इस चीज का भी ख्याल रखें कि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली, एंड उसके बाद आई चूज माय.
I choose the boy. तो हमें ये चेक यहाँ पर सी this is a joint effort. This is a joint effort between parents and children. Parents को चाहिए कि children पे ना force करें, और बच्चों को चाहिए कि parents के ऊपर ना force करें. यहाँ हार्मनी मेंटेन करते हुए एक दूसरे को समझते हुए चलना, this is our religion. Okay, yes, Dr. Nasreen. Yeah, what if my parents, as it is my parents don't understand me, how would they make a good choice? If you think your parents do not understand you, how do you know that your parents don't understand you, first of all? If you think, yes, Nasreen, if you think your parents don't understand you, what made you think your parents cannot understand you? Because I am a educated, independent, very affluent person, and my parents are from village. Their thinking and my thinking don't match at all. So I have my own choice and my own criteria. Yes, very good. आप बहुत एजुकेटेड हैं, आप बहुत से डिग्रीज ले चुके हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से डिग्रीज ले चुके हैं, और आपके पेरेंट्स अनपढ़ गवार है. बट व्हाट इस्लाम टेल्स अस, इस्लाम टेल्स अस कि हमारी पर्सपेक्टिव, और यानी हर मुसलमान की पर्सपेक्टिव सिर्फ एक होनी चाहिए, और वो है कुरान और हदीस की पर्सपेक्टिव. आप एजुकेटेड किस तरीके से एजुकेटेड है? आप एजुकेटेड दुनिया के तरीके से एजुकेटेड है. दीन के एजुकेशन में आप क्या है? what have you scored there? If you are something scholar है आप दीन के, and your parents are nothing, तब आप कहना कि हाँ आप अपने पेरेंट्स, my parents don't understand me, उस वक्त आप कह सकते हैं. लेकिन उससे पहले आप नहीं कह सकते. Keep your secular thing separate from your religion. Our life is governed by our religion. सेक्युलर जो डिग्रीज हम हासिल करते हैं उससे हम आखिरत नहीं बना सकते, ना ही हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं. उससे सिर्फ हम वेल्थ अकम्प्लिश कर सकते हैं, सिर्फ वेल्थ, फेम, पावर, नथिंग एल्स, जो कि इसी दुनिया में वापस छोड़कर चला जाना है. आखिरत डिपेंड्स अपॉन दीन. सो नेवर थिंक कि आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा जानते हैं. आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा नहीं जानते, बिकॉज कुरान थिंकिंग एक होनी चाहिए, एंड दैट इज इस्लामिक थिंकिंग. जब आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो लड़का सही नहीं है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स व्यू, कि क्या देखा है उन्होंने, किस वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हैं. ओके, इन सर्टेन कंडीशंस जहां पर बच्चे दीन ज्यादा जानते हैं, पेरेंट्स कम जानते हैं, तो फिर हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, रीजन कर सकते हैं. देखे ये लड़के में ये क्वालिटीज है, दीन हमें ये सिखाती है कि पहले उसका रिलीजन देखो, ये लड़के में रिलीजन है, दैट इज व्हाई आई वांट टू मैरी दिस बॉय. तो आई एम श्योर कोई भी माँ बाप उसके ऊपर नहीं बोलेंगे. तो अगेन मैं बता रही हूँ, ये जॉइंट एफर्ट है. पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चों को पेरेंट्स को समझना चाहिए. और जैसे अभी डॉक्टर नसरीन ने कहा है, जस्ट बिकॉज आई एम एजुकेटेड, I am modern, that doesn't qualify you as you being more intelligent than your parents. I'm sorry, because हमारी parents और हमारे बीच में common चीज क्या है, और वो है कि हमारी thinking, Islamic perspective की thinking, because as I said, that governs not only this life but also akhirah. Yes, Dr. Nasreen. There are few more questions, but it pertains to after marriage. Yani, okay, I'm a very dedicated and a very shy kind of a girl, and I got married into I wouldn't say forced arranged marriage, but yes, I didn't know this person, but now there is no connection, and this person is also not at par. So I need to continue, because marriage is all about responsibility and compromise and sacrifice. So yani, I just continue, and this is how I should suffer for the rest of my life. No, this is not how I should suffer the rest of my life. Actually, ये हमारा टॉपिक है ही नहीं, but फिर भी I will just deal with it. बहुत शॉर्टली मैं करूंगी. सबसे पहले हमारा काम है, जैसे यहाँ पर किसी ने कहा था, जोड़े आसमानों से बन के आते हैं, यहाँ पर वो अप्लाई होता है. जोड़े आसमानों से बन के आते हैं. हमारी शादी वहीं होगी जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए तय कर लिया है. बीवी शौहर के रिब से आती है.
बीवी शौहर के रिब से बनाई गई है, तो हमारी शादी वहीं होगी जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तय कर दिया है। अब जो सिनेरियो डॉक्टर नसरीन बता रही हैं, ये सिनेरियो अरेंज मैरिज में भी हो सकती है, ये सिनेरियो लव मैरिज में भी हो सकती है। लव मैरिज में लोगों ने, लड़के ने आपको ये सारा कुछ दिखाया है, अच्छे से सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं, एंड यू फेल कि हम कंपैटिबल है। शादी के बाद पता चलता है कि हम कंपैटिबल नहीं है, तो क्या करें? तब भी हम शादी को लेके चलें, बिकॉज जोड़े आसमान से बनते हैं, अल्लाह की मर्जी से ये रिश्ता हुआ है। नाउ इट इज माई ट्रायल, माई हस्बैंड इज माई ट्रायल। और मैरिज इज व्हाट? मैरिज सपोज टू बी अ पीसफुल हार्मनी। घर में खुशी पैदा करना और सुकून पैदा करना मेरा काम है। ओके, मेरा घर है और घर में क्या पैदा होना है? खुशी और सुकून। ये चीज मुझे घर में पैदा करना है। और ये मेरा हस्बैंड है जो कि नॉट विथ मी, बट ओके, आई कैन कन्वर्ट दैट। आई कैन, थोड़ा मैं टर्न हूँ, थोड़ा वो टर्न हो, हम दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, दोनों मिलकर सैक्रिफाइस करें और मेक अ ब्लेसफुल मैरिज। दोनों को काम करना होगा। अगर आप कर रहे हैं, नो आई विल नॉट गो फर्दर बिकॉज इसके आगे और बहुत कुछ है, बट लेट अस कीप इट इन अ गुड नोट। और मैं यही कहूंगी कि हम दोनों मिलकर, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर एक दूसरे को मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है। Yes, Dr. Nasreen. Yeah, a very good point has been quoted here, that love, one second, I just want to read out because I don't want them to be ignored. Yeah, love is not haram, lust is haram. We should place our tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah azza wa jal is the one who have made our mates and is the best for us. As Allah subhanahu wa ta'ala also mentions in the Quran, pure men are for pure women are for pure men, impure men are for impure women, and impure women are for impure men. Indeed. Yeah, very good. Very good. किसने लिखा है ये? Whoever, is it a girl or is it a mother? No, Rida Aslam, actually I have no history, but then subhanallah, this is what we are also trying to project here. And yeah, again, just to give you a synopsis, because we are ending very soon. Yes, you get married, then you fall in love, then you get married. It's possible to love someone from afar due to the good you have heard, then marriage strengthens that bond. Is it not marriage about commitment and responsibility and respect and building a family together? So of course there is a lot of things to be done. जैसे कि डॉक्टर सफीना ने कहा कि कुछ आप में changes आएंगे, कुछ कदम आप चलोगे, कुछ कदम आपके पार्टनर चलेंगे, and that is how कुछ sacrifice वो करेंगे, कुछ sacrifice आप करोगे, और फिर जाके बेइज़्निल्लाह दोनों जो है इंशाल्लाह एक कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं. And with love, the big ingredient is respect. Respect is something that is very important in marriage. So think about each of these statements. In each case, think about what you would base your marriage and happiness on. ये आप लोगों के लिए, young girls के लिए एक activity है. So think about what are the aspects that you need in your ideal partner and in your marriage. And उसी के ऊपर फिर contemplate करके make nice duas and have a very good chord and a very good communication with your parents. And what does Islam teach us? We have talked about few verses and a hadith. Muslims believe that character and piety, हमारा जो तकवा है वो बहुत important इसमें ingredient है to choose a partner. And जो वो 4 ingredients थे वो हमारे पास already दिखाई दिए हैं कि what way we should be selecting our partner, and we as parents what we should be looking for. So शैतान के trap में नहीं फंसना है. Love marriage or arranged marriage, anywhere, whichever way we look at it, there is always a halal way to do things. So just remember this thing, make loads of dua, and inshallah bi'idhnillah we pray कि हमारे जितने आला औलाद हैं उनके नसीब बुलंद हो, उनको बेहतरीन पार्टनर्स मिले और ऐसे पार्टनर्स मिले जो उनका जन्नत का रास्ता जो है वो आसान करें. Because there is nothing more beautiful than having a fantastic life partner with whom you can enjoy practicing your Islam, and there you lay a solid foundation for your children and for the society and for the community and the nation. Yes. Dr. Safina, is there time to take questions? Because there is a hand raise. Right. We'll take questions. Let me just cover few more points which are very valid points. जैसे अभी किसी ने कहा lust. So do remember, ये जो attraction है, ये attraction will be turning into lust. It will not turn into love.
सुमैया प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा। तो ये चीज यंग गर्ल्स को पता होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। हम जो समझते हैं कि आपस में लड़के लड़कियां मिलते हैं और ये बाहर डेटिंग्स पे जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे से अकेले अकेले में मिलते हैं, and they think they are falling in love. No, sorry, they are not falling in love, but they are falling in lust. That is lust. Lust और love में क्या फर्क है? Love is between everybody. I love my mother, I love my father. Lust is only between a boy and a girl. ना महरम के बीच में lust होता है, और जब वो शादी के बिना वो लस्ट होता है, शादी के बाद वो लव होता है। और हमने बताया लव इज प्योर, लव इज वेरी प्योर, अल्लाह से मोहब्बत करना है, सो दैट प्योर इट इज। लस्ट इज इम्प्योर, लव इज दैट व्हिच कैन बी शोकेस्ड टू एवरीबॉडी, लस्ट इज दैट व्हिच हैज टू बी हिडन, आपको छुपा के करना पड़ता है, दैट इज लस्ट। Do understand the difference between lust and love, attraction and love? जो हम लड़कों को देखकर जो डेटिंग्स चलती है, ये सारी चलती हैं, that is only attraction leading towards lust. तो फिर वो पता नहीं फिर किधर एंड होगी। तो इसीलिए what I suggest, मेरा यंग गर्ल से यही कहना है कि बच्चों, आप लोग आने वाली जनरेशन हो, आपको जो काम हम कर रहे हैं, अब ये काम आप लोगों को करना होगा। दीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों के ऊपर होगी। हमने हमारी जनरेशन के लिए कर लिया है, लेकिन अब आप लोगों की बारी होगी। आपको ये दीन का दीन को संभालना होगा। आप लोग प्योर रहोगे तो आगे आप लोग कर पाओगे। I do understand this is the 21st century, ये सब होता है, लेकिन इन सारी चीजों को आप लोग समझो कि क्या चीज हो रही है हमारी। ये जैसे मैंने आपको बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट बताई, ये सारी चीजें बताई, इन सब को याद रखो। एंड लव इज ब्लाइंड, नो सॉरी, लव इज नॉट ब्लाइंड। अगर लव ब्लाइंड होता तो फिर हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। लव इज नॉट ब्लाइंड, लव इज रीजनिंग। आप अगर you're falling for somebody, you're getting attracted to somebody, reason it out. हमने आपको बताया है 4 चीजें। उस सबसे पहले उसका दीन देखो, बिकॉज वो आपका दीन मुकम्मल करेगा, आप उसका दीन मुकम्मल करोगे। तो जब शादी हो रही है तो हमारा काम है कि हम शादी किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम एक इस्लामिक माहौल में अपने बच्चों को ले आए, हमारी सोसाइटी स्ट्रेंथन हो। सो इट इज नॉट जस्ट माई life, it is I have duty towards my parents, towards Allah subhanahu wa ta'ala, towards society. Take care of all those duties, because as I said, Islam अब आप लोगों के खानों पे है, अब आप लोगों से आगे जाएगा। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। सो अगर आप मुसलमान हो, मोमिन हो, तो फिर इन सारी बातों का ख्याल रखना। तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, लस्ट है। बेस्ट थिंग, अगर आपको कोई अट्रैक्ट कर गया, टेक इट टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के पास जाएं और उनको बताएं कि आप इवैल्यूएट करें हमारे लिए कि ये लड़का हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। राइट? सो विल now we'll take questions in this after winding up. We'll take the questions. Okay, conclude now. Know what is actual love is. What is love? Love is to love Allah subhanahu wa ta'ala first, Rasulullah sallam, and after that loving everybody else. Love comes with responsibility, and love grows with time, and love strengthened with giving. Ye hai love, and it is pure. It's very pure. And what we said, it is जो datings पे जाते हैं, जो ये लड़के लड़कियों के बीच में होता है, that is attraction. So do understand what love is. और जहाँ पर रिश्ते, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के जॉइंट, यानी कि ना अरेंज हो ना लव हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। पेरेंट्स भी एफर्ट डालें, और अगर लड़कियों को कुछ पसंद आ जाए
तो वो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स के पास जाए, पेरेंट्स उसको इवैल्यूएट करे, सही तरीके से इवैल्यूएट करे और ये देखे कि आपकी बेटी खुश रहेगी, उस रिश्ते में खुश रहेगी, उसका ईमान, लड़के का ईमान और लड़की का ईमान मिलकर मुकम्मल ईमान होगा और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे. That is the most important thing what parents have to see. Not finance, not beauty, nothing minds. Important ये है कि दीन काउंट हो और दोनों लड़का लड़की के थिंकिंग मैच हो और उसके बाद में कंपैटिबिलिटी आपस में खुद बनानी है. लड़का और लड़की को आपस में बनाना है थ्रू सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज, कंपैटिबिलिटी बनाना है. एंड फाइनली एक मैरिज को ब्लिसफुल बनाना है, पीसफुल बनाना है, खुशहाल बनाना है, वेयर देयर इज लव एंड मर्सी. दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के दिलों में लव फॉर ईच अदर एंड मर्सी फॉर ईच अदर. मर्सी टू फॉरगिव व्हाटएवर रॉन्ग दे हैव डन. एक दूसरे के साथ कभी गलती हो जाती है तो जस्ट हैव मर्सी ऑन देम एंड फॉरगिव देम. So there should be love and mercy and a blissful marriage जहाँ पर आने वाली generation, जहाँ पर जो नए बच्चे आएंगे तो वो वहाँ पर खुशहाल जिंदगी गुजार सके. Okay, with this I end my discussion for today, and Nasreen has also concluded. We both have concluded and hope it was fruitful and useful for everybody. Alhamdulillah, we tried our best to change the wrong notions of the society and to bring them into the Islamic perspective, expose the Islamic perspective and expose the wrong secular notions. Now let's move on. We'll have two raised hands have Fatima, Faizan and Rida Aslam. Yeah, okay. Questions and one by one आप लोग अपने point of views भी share कर सकते हैं. Okay. Yes, Fatima, Faizan. Assalamu alaikum, Baji. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. My question is, now as a mother, when can we open up to our children about this topic? Like, should we wait for them until they come and tell us about our attraction, or should we talk about this and discuss about all this with them beforehand? According to the age of the girl, उसको आपकी बेटी अगर 10 इयर्स की है तो ओके, दिस इज टू यंग. जैसे आप 11 इयर्स की हो जाते, 10 इयर्स में आप उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जोड़े रखें. उसके बाद फिर बच्चे की एज के हिसाब से और वो कितना एक्सपोजर मिल रहा है उसको, उस हिसाब से हमें पहले ये बताते रहना चाहिए. अपोजिट जेंडर से हम दूर रखें. उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बताना चाहिए. जैसे 12 इयर्स के हो गए, 13 इयर्स के होने, 12 इयर्स के बाद से उनको ये बताते जैसे नाउ अट्रैक्शन will occur, so be careful and if something happens tell me. और कभी आप अपने बच्चों के साथ जोक भी कर सकते हैं. Okay, that boy आपको इस तरीके से देख रहा है, what is happening, something like that you can tell them, and आप अपनी कहानियां बता सकती हैं कि जब हम कॉलेज में थे तो ऐसा हमारे साथ होता था, that boy said this and ये सारा कुछ, ताकि एक फ्रेंडली माहौल बने हैं और आप अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस गेन कर सके और बेटी रिलैक्स हो सके. हाँ, आई कैन शेयर दिस टॉपिक विथ माय मदर बोल के. देयर इज नो टैबू इन दिस. आई कैन कम एंड टेल व्हाटएवर आई वांट टू माय मदर. तो ये होना चाहिए. Yes, Nasreen, Dr. Nasreen. Yeah, I would just like to add here that Fatima, this will be a part of your tarbiyah wherein you are keeping your eyes open, but never suffocate a child. Like as Dr. Safina said, there is an age you should gauge. Your mother knows best when is the right age to tell them. But the moment they are hitting their puberty, the moment when you see signs developing, develop a very open communication with her. Keep your eyes open, restrict her, give her the freedom, give her the area of which is the forbidden area and what are the permissible aspects. But you keep a tap on her, but don't suffocate her. That she shouldn't be, you should be the first person she should come and tell her secrets. So that kind of a relationship has to be developed. And definitely we keep repeating and reminding that dua makes a lot of difference in this. Constantly make dua for children that they stay on the straight path and they become the coolness of your eyes. So inshallah, yes, I hope so. It helps in your question. Rida Aslam? Yes, the love is halal and lust is haram was quoted by me and also the Quranic ayahs. I just wanted to add one thing in it, that if the love is halal,
then Allah will make a way, inshallah, Bidnillah. for them to get married, inshallah, in a halal way, and just not, and the place of the lust should not come in between them before Very marriage. Nice. Very nice, mashallah. That's very true. Jazakallah khair. Zainab. वालेकुम सलाम व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा आपने सेशन करवाया है और जो है बहुत कुछ बातें पता चली हैं जो जिनकी बातें था पता। मेरा ये सवाल है कि आजकल जो है फैमिलीज में बहुत लड़ाइयाँ, ये हर फैमिली में बहुत कॉमन है। लड़ाइयों की वजह से भी बहुत रुकावटें आती हैं रिश्तों में। रिश्ते जो है एक दूसरे, जैसे कि एग्जाम्पल एक माँ दूसरी माँ को नहीं पसंद करती या लड़की की माँ लड़की की माँ को नहीं पसंद करती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नसरीन आप ले रही हैं क्वेश्चन? ये एक्चुअली वही है जो यानी पर्सनल, कल्चरल और सोशल डिफरेंट यानी नॉट सो आइडियल सिचुएशन में है जहां पर दीन की बहुत कमी है। एंड यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर इनकी आपसी पहली कोई दुश्मनी हो तो उसमें लड़की इज ऑलरेडी मैरिड या वो मैरिज करना चाहती है उस घर में लेकिन वो नहीं कर पाती है, तो इसमें ये है कि यू हैव टू इंटरवीन। लाइक अगर इफ कोई ना कोई तो घर में बड़ा होगा जो साउंड हेड का होगा, राइट? तो you have to approach the sound elders of your family. If that's not happening, there are definitely some scholars, some influential person with the right aqidah whom you can approach, and before that you are making loads of dua and you are doing loads of istikhara, and then inshallah the course of action begins. But ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की खासियत है कि the cultural and the family feuds will put you in a very tight spot. So yes, I understand, and I think Dr. Safina will add few things in there. Okay, jazakallah khair. ये जो मैटर है कि see what I feel ऐसे circumstances में the girls should दोनों माँ को, सास और माँ को सामने बिठाएं और बता दें कि आप दोनों की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, आप दोनों अपने मैटर सॉर्ट आउट करें ताकि हम आराम से रह सकें। बी ओपन और डोंट बॉदर कि उनको तकलीफ पहुंचेगी, बिकॉज दे आर ऑन द रॉन्ग पाथ। व्हाट आई सजेस्ट इज आप दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर आए, कन्फ्रंट कर रहे दोनों को एक दूसरे के सामने और कह दे कि प्लीज अगर आप चाहते हो कि हम सुकून से रहें, आप लोग आपस में भी साथ रहें। आप लोग You are my mother, you are my mother-in-law. Both of you are important for me. उनको importance दिखाई कि both of you are important for me, and you can take the help of your husband. All four of you sit together and convey to them कि both of you are important for us, and we care and love you both. तो please हमारा साथ दें और हम चारों मिलकर खुश रखें, चारों मिलकर हम खुश रहें। तो I think अगर हम इस तरीके से बात करें ना तो मामला सॉल्व हो जाएगा। Take the help of your husband and solve it, rather than अपने आप को घुटन के उसमें डालने से बेहतर है कि एक ही बार कन्फ्रंट कर दे और सॉल्व कर ले। पहले कोशिश करें इंडिविजुअली सॉल्व करने की, माँ को समझाए, सास को समझाए, नहीं होता तो कन्फ्रंट कर दे और फिर ये भी कह दें कि अगर आप दोनों मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर टू टेक इट फर्दर, अगर इन केस उनको दोनों मिलकर नहीं रहे तो कहते हैं कि फिर हम किसी की भी नहीं मानेंगे। देयर आर वेज टू हैंडल दैट इन अ प्रॉपर मैनर, राइट? एनीबॉडी एल्स? शबाना अंसार? My dear sisters, Dr. Safina and Dr. Nasreen, mashallah, you both are doing a real good task by bringing about all good topics which will help us all Muslim sisters. Jazakallah khair, and may Allah bless us all on the right guidance. What is my question? Yeah, just barakallah fi. What is my next question is, we have been speaking about how to bring about our girl children. Now my question is how to bring about our boy children. Like I have two teenage boys, one is just entering into teenage and one is already in teenage. So how should we bring about them? So please kindly tell about that. Jazakallah khair. We have a group is running on that Qawi group. So Dr. Nasreen
आप डॉक्टर नसरीन से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह she will help you in that regard. I would just quickly Mrs. one sentence I would say, Shabana, that was a very fantastic question you have asked, and हम लोगों ने ये specifically सिर्फ girls के लिए नहीं restrict किया था. Just a correction that this is from the mother's point of view to raise beautiful Muslim boys and beautiful Muslim girls और उनकी understanding open करे. And boys को लेके जो है ना rearing and gearing is totally on a different tangent. So as Dr. Safina said, there is a program running for the tweens and the teenage boys which is called Qawi Club, where we are taking up all these matters, जहाँ से उनको बचपने से जब हम उनको freedom का chapter पढ़ाते हैं कि उनकी क्या हद है. At the same time we are working on building their spine so that they can take up the responsibilities as well and involve themselves within the family structure, not the typical kind of men that we see these days who are not ready for the responsibility. But yes, we are working on that. So inshallah, I'll post the details again in the group and try to join that club and enroll your boys, because the instructors and all are working closely with each and every boy there. Okay. Inshallah. Jazakallah khair. और एक announcement हम कर दें. We are coming up with girls as well. गर्ल्स का प्रोग्राम भी बहुत जल्द शुरू होगा इंशाल्लाह, मैं और नसरीन की तरफ से, एंड विल बी टेकिंग ओनली लिमिटेड गर्ल्स. तो ये आपको अभी से एडवांस बता रहे हैं. बी रेडी विद दैट. विल बी टेकिंग ओनली वेरी लिमिटेड गर्ल्स, मे बी अराउंड 25. वी प्लान टू हेल्प देम चेंज देयर थिंकिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेक्युलर टू इस्लामिक. तो वो हमारा बेसिक एम होगा, एंड विल बी टारगेटिंग वेरी फ्यू चिल्ड्रन, बिकॉज हम इंडिविजुअली उनको उनकी थिंकिंग को बदलने की कोशिश करना चाह रहे हैं. तो विल बी टेकिंग ओनली लिमिटेड गर्ल्स. इंशाल्लाह द फ्लायर विल रीच यू वेरी सून. ओके मिसेस हबीब. अस्सलाम वालेकुम. जी, अक्सर बच्चे ना, स्टूडेंट्स जो स्कूल्स जाते हैं, वही आपने कहा है कि कोई एजुकेशन तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि अलग नहीं है कि हम डालें बच्चों को. तो वो अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हक करते हैं जब भी मिलते हैं, तो उसको है ना, वो उसको गलत नहीं समझते. कहते हैं कि वो तो फ्रेंड्स हैं, वो हमारे साथ पढ़ने वालियां हैं, पढ़ने वाले हैं. तो वो बात को बिल्कुल गलत नहीं मानते हम कहने के बावजूद भी, यानी कि वो इस्लामिक नॉलेज रखने के बावजूद भी. Yeah, this we will be dealing इंशाल्लाह. ये लड़कों के लिए ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लड़कियों के लिए भी स्टार्ट होगा, और ये मैटर्स हम उसी में डील करेंगे. ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैर. Now, any question pertaining to today's topic, या आप लोग कोई शेयर करना चाहते हैं, अपने पॉइंट देना चाहते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स? Dr. Safina, we are getting a lot of personal questions actually, so I'm just asking them to post it personally. Chat पे मुझे post कर दें इंशाल्लाह. फिर हम नाम हटा कर उसको anonymously we will put it in the group also, जिसमें सबका इसमें खैर हो जाए, information upgrade हो जाए. लेकिन जो अभी topic related है, सिर्फ वही questions पूछे जाएं तो better रहेगा for the benefit of all. Yes, topic related, please. Topic related question ही अभी पूछिएगा. और अगर आप लोग इसमें, as we said, कि आप लोग खुद contribute कर सकती हैं. 1 minute is given to everybody. So whoever would like to speak, please come up and speak. All right. Since there are no questions and nobody would like to speak, we will conclude our session. Yes, Tabassum? जी बाजी, मुझे यही कहना है कि माशाल्लाह जो एक दुआ है वो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, वो हम लोगों को अपने बच्चों को बहुत शुरू से प्रैक्टिस करवा देनी चाहिए कि वो बच्चे शुरू से वो दुआ पढ़ें, ताकि इंशाल्लाह बेशक अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, जैसे भी एक उनको अच्छा साथी मिल सके फॉर फ्यूचर. बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर. All right, Nasreen, it's high time. I think we'll wind up. Yeah. Actually, about time again. Yes, until we meet next time, and jazakallah khair everybody for joining us in this session, and until we meet next, so take care. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Jazakumullah khair.